Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is paper first of BA part first, Foundations of Political Science, and in this video we are going to discuss about new approach, that is political socialization. So what is the meaning of socialization, what is the aim of this process, and agents of political socialization. So let's start. First, we will start with the definition, that is according to Hammond and Verba. This is the process by which political culture are maintained and changed. So, political socialization is a process by which the individual becomes acquainted with the political system and which determines his reactions to political phenomena. The process by which political culture is shaped at the individual level and at the community level is passed on from generation to generation is called political socialization. So this is like a learning process by which norms and behavior acceptable to a well-running political system are transmitted from one generation to another. So political socialization aims at transmission of political values from one generation to another. So the main emphasis of this concept of political socialization is the transmission of political values from one generation to another, and political socialization shapes and transmits a nation's political culture, or perhaps it would be more appropriate to say that it maintains, transforms, and sometimes creates the political culture of a people. It maintains a political culture by successfully transmitting it from an old generation to a new one. Next one is agents of political socialization. We can see here one by one. First one is family, then comes educational institution, next one is peer groups, next one mass media, experience in employment, religious institutions, role of government and party agencies, and symbols. So first one is family. So family plays the key role in molding the character of the child and his attitude towards authority. Family plays the leading role in influencing the child in his formative stage. The hidden influences shape his entire attitude towards authority. Second one is educational institutions. After the family, the educational institutions exercise the strongest possible influence, both hidden and manifest, upon the child. Children getting education is in a particular institution may develop particular kind of frame of mind. Third one is peer groups. So peer groups also create a particular influence on the mind of individual more than in or outside the school. Peer group, what is the meaning of peer group? So peer group is a group of people of the same age sharing similar problems. So peer group is thus a friendly group. Changes in one's mental attitude from hostility and aggression to cooperation and vice versa are registered while in the company of friends. The courses of study, debates, discussions, and extracurricular activities have their own impact upon the attitudes of their grown-up students. Next one is mass media. A controlled mass media may bring out a sort of uniformity of views and a special life for the existing political system, but free mass media, television, radio, and free press may create a special dislike or resentment in the mind of the individual against the dictatorial political system. So mass media also plays a significant role in molding the views of the children. Next one is experience in employment. Experiences which are gained while in employment are also very important. An individual brought in a family given to cooperation by nature and believing in democratic principles may develop a strong sense of resentment, even of violence, and if he finds his employer behaving meanly. In employment, one learns about the attitude of dominance of employers towards the employees and the superiority complex of the officers towards their subordinates, and the general strike of the workers for the improvement of their wages and conditions of work and consequent collective bargaining by the workers may exercise strong political influence or powerful socialization both for the workers and the employers.
Next one is religious institutions. So religious institutions play an important role in political socialization. This agent is most active in India as the people are readily swayed by their religious feelings. Next one is role of government. Political parties disseminate political knowledge and values, mobilize political action, and train political leaders. Individuals come directly into contact with the governmental functionaries. They come to know for what purpose the government stands for and what the government is doing. If the government does something good, then the idea of obedience is reinforced amongst the individuals. Last one is symbols. So symbols also play an effective role in the political socialization. They inculcate a new spirit among the youth, and the people begin to dedicate for national cause again. So these are the agents of political socialization, and contribution of political socialization is there. So political socialization also helps a lot in comparative study of political system, and only political socialization can make us understand thoroughly what type of political culture a country possesses. And secondly, from political socialization we can also know when particular qualities and elements of a political culture grew. Political socialization helps us to understand who are the leaders of a particular country, what qualities they should possess, and how they are involved in politics in different countries. And so these are the some we can say this was the contribution of political socialization. आज हम लोग बात कर रहे हैं राजनीतिक समाजीकरण के बारे में। तो जब हम लोग राजनीतिक समाजीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास में वही आ जाता है जिससे हमने राजनीतिक संस्कृति की हमने शुरुआत की थी कि ये भी एक आधुनिक अवधारणा है जो राजनीतिक समाजीकरण है। और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में डेफिनेशन आ जाती है। आमंड और वर्पा का कहना है कि जो राजनीतिक समाजीकरण है ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति मेंटेन की जाती, व्यवस्थित की जाती है और उसे परिवर्तित किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण का जब हम लोग अर्थ करते हैं तो इससे पहले कि हम लोग राजनीतिक समाजीकरण को हम लोग जाने, हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि समाजीकरण किसे कहते हैं। तो समाजीकरण का अर्थ होता है या सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण मतलब प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब इस लर्निंग की प्रोसेस में हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग वो सीखते हैं जो हम लोग अपने सोशल एनवायरनमेंट के जितने आपके वैल्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, आइडियल्स हैं, और इसके अलावा जो भी हमारे पास के नॉर्म्स हैं, पैटर्न्स हैं, जो जिनको हम लोग सीखते हैं। प्लस समाजीकरण की विशेषता ये होती है कि इसमें जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं, ये नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, इन्हें हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये हस्तांतरित होती हैं। और ये एक पीढ़ी जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, एक लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है, पूरी जीवन भर ये चलती रहती है। तो जब हम इस समाजीकरण की प्रक्रिया को हम राजनीतिक संदर्भ में लागू करते हैं तो वो बन जाता है राजनीतिक समाजीकरण। तो सिंपल सा राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसे राजनीतिक संदर्भ में लागू करना। तो इसका अर्थ हो जाता है कि हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जब हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, उसके नॉर्म सीखते हैं, उसके पैटर्न सीखते हैं, उसके प्रतिमान, मूल्य, आदर्श, विचार, जब हम लोग इनको सीखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की इन सब चीज़ों के बारे में जब व्यक्ति सीखता है तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये कहलाती है राजनीतिक समाजीकरण। और इसके अंतर्गत जो हम चीज़ें सीखते हैं राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत जो राजनीतिक वैल्यू होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं राजनीतिक समाजीकरण के उपकरण या साधन के बारे में कि हम लोगों का जो राजनीतिक समाजीकरण है ये किन किन साधनों के द्वारा हम लोग इसको सीखते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है फैमिली जो कि जो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर हम लोग जो हमारी फैमिली होती है उसका एक बच्चे का जो फॉर्मेटिव ईयर्स होता है, जबकि स्टेज होती है, जबकि उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो बच्चे पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव होता है ये हिडन और मैनिफेस्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से होता है, लेकिन ये उसके पूरा जो एंटायर उसका एटीट्यूड होता है ये उसको निर्धारित करता है। सेकंड आ जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं। फैमिली के बाद में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं इसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर रहता है। ये भी आपके हिडन एंड मैनिफेस्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके का होता है। और यहाँ पर जो बच्चे का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका इतना प्रभाव होता है कि यहाँ पे जो बच्चे का फ्रेम ऑफ माइंड है वो एक तरीके से यहाँ पर वो डेवलप होता है।
थर्ड आ जाता है पीयर ग्रुप्स आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि पीयर ग्रुप हमें कहा किसे जाता है। पीयर ग्रुप होता है मतलब लोगों का एक समूह जो कि सेम एज ग्रुप के होते हैं और जिनकी सिमिलर समस्याएं होती हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा, इसे हम लोग एक तरीके से मित्रता समूह कह सकते हैं। एक व्यक्ति के जो मित्र होते हैं जिनका उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है, जो आपस में अपने सुख दुख और अपनी समस्याएं साझा करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हमेशा सहायता करते हैं, वो पीयर ग्रुप कहलाते हैं। और ये जनरली जो पीयर ग्रुप होता है जो हमेशा एक दूसरे की सहायता करता है, ये जनरली एक लाइफ लॉन्ग चलता है। और तो इसके अंतर्गत व्यक्ति है वो एक दूसरे से सहयोग करना सीखता है। और इसके साथ ही हमारा जो कोर्सेज ऑफ स्टडी है, हमारी पढ़ाई के जो कोर्सेज हैं, वाद विवाद हैं, डिस्कशंस हम लोग करते हैं। और इसके अलावा पढ़ाई के अलावा जितनी पाठ्येतर गतिविधियाँ होती हैं, इन सब का भी काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है मास मीडिया आ जाता है। संचार की जो साधन है मास मीडिया आ जाता है। और इसके अंतर्गत ये दोनों ही प्रकार का होता है। एक तो कंट्रोल्ड मास मीडिया होता है, मतलब जहाँ पर उसको जो टीवी है, मीडिया है, उसे एक दबाकर कंट्रोल में रखा जाता है। जहाँ पर इस तरीके का मीडिया होता है वहाँ पर लोगों में वैसी ही फीलिंग्स होती है। और जहाँ पर फ्री मास मीडिया होता है, स्वतंत्र होता है मीडिया, वहाँ पर हर व्यक्ति को अपने विकास के पूरे अवसर मिलते हैं, अपनी पसंद या नापसंद को व्यक्त करने का और इस तरीके का। तो एक काफ़ी ज़्यादा ये एक राजनीतिक व्यवस्था में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपीरियंस इन एम्प्लॉयमेंट। जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, हमारा जो वर्क प्लेस होता है एम्प्लॉयमेंट, वहाँ के एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं और उनके बिहेव से हम लोग काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं। हमारा जो वहाँ पे ग्रुप होता है वर्क प्लेस पे, हम लोग उससे सीखते हैं, उनसे सीखते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है धार्मिक संस्थाएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे कि हमारा जो हम लोग देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्टी एजेंसी, सरकार का और जो राजनीतिक पार्टी एजेंसीज हैं, दल हैं, उनका भी यहाँ पे आ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें नॉलेज और इन सबसे हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। इसके ये राजनीतिक हमारी जो गतिविधियाँ उनको मोबिलाइज करता है, उनको बढ़ाता है। और हमारे जो राजनीतिक नेता हैं उनको ये ट्रेन करता है। और जो हमारी गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, लोग होते हैं जो सरकारी मशीनरी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, उन्हें सरकार के बारे में पता चलता है, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और उसके बारे में वो अपनी राय देते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है प्रतीक आ जाता है। प्रतीक भी राजनीति समाजीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये एक तरीके से हम लोगों के अंतर्गत हमारे देश के लिए, हमारे नेशन के लिए कुछ करने का और इस तरीके का एक जज्बा हम लोगों में, उत्साह हम लोगों में पैदा करता है। इसके बाद में इसका राजनीतिक समाजीकरण की देन आ जाती है। राजनीतिक समाजीकरण की देन है कि इसके अंतर्गत जो तुलनात्मक अध्ययन है राजनीतिक व्यवस्थाओं का, वो पॉसिबल बनाता है। और इसी के थ्रू देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि एक देश के अंतर्गत किस तरीके की राजनीतिक संस्कृति है और जो पर्टिकुलर क्वालिटीज़ और एलिमेंट्स होते हैं, जो विशेषताएं और तत्व होते हैं एक राजनीतिक संस्कृति के, वो इसमें उनको ये आगे बढ़ाता है। और इस तरीके से ये हमारे काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक सिस्टम को बनाए रखने में जनरेशन टू जनरेशन हमारी मदद करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।